السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکی کے مسائل کا بیان۔ وضو کا طریقہ۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں وضو کا پکا ارادہ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے دونوں ہاتھ 3 بار گٹوں تک دھوئیں، پھر مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں اور مسوڑوں کو مل کر صاف کریں، اور اگر دانتوں یا تالوں میں کوئی چیز اٹکی یا چپکی ہو تو اس کو انگلی یا مسواک یا خلال سے نکالیں اور چھڑائیں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں۔ اور اگر روزہ دار نہ ہو تو گرگرہ بھی کریں، لیکن اگر روزہ دار ہو تو گرگرہ نہ کریں کیونکہ حلق کے اندر پانی چلے جانے کا خطرہ ہے۔ پھر داہنے ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اس طرح چہرہ دھوئیں کہ ماتھے پر بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور داہنی کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے اور کہیں ذرا بھی پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ اگر داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئیں اور داڑھی میں انگلیوں سے خلال بھی کریں، لیکن اگر احرام باندھے ہوں تو خلال نہ کریں۔ پھر 3 مرتبہ کہنی سمیت یعنی کہنی سے کچھ اوپر داہنی ہاتھ دھوئیں، پھر اسی طرح 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھوئیں۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی یا چھلا ہو یا کلائیوں میں تنگ چوڑیاں ہوں تو ان سبھی کو ہلا پھرا کر دھوئیں تاکہ سب جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر ایک بار پورے سر کا مسح کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو نوک کو ایک دوسرے سے ملائیں اور ان 6 انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف سر کے آخری حصے تک لے جائیں۔ اس طرح کی کلمہ کو دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھا اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائے۔ پھر سر کے پچھلے حصے سے ہاتھ ماتھے کی طرف اس طرح لائیں کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں۔ پھر کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کانوں کے اندر کے حصوں اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کریں اور انگلیوں کو پیٹھ سے گردن کا مسح کریں۔ پھر 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت یعنی ٹخنے سے کچھ اوپر تک دھوئیں۔ پھر بایاں پاؤں اسی طرح 3 بار دھوئیں۔ پھر بائیں ہاتھ کی 6 چھنگلیوں سے دونوں پیر کو انگلیوں کو اس طرح کھلال کریں کہ پیر کی داہنی چھنگلیاں سے شروع کریں اور بائیں چھنگلیاں پر ختم کریں۔ وضو ختم کر لینے کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا پی لیں کہ یہ بیماریوں سے شفا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وضو میں ہر عضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا کریں اور درود شریف اور کلمہ شہادت بھی پڑھتا رہیں۔ اور یہ بھی بہت بہتر ہے کہ وضو پورا کر لینے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اور سورہ انا انزلنا پڑھیں۔ اگر ان دعاؤں کو پڑھنا ضروری نہیں، پڑھ لیں تو اچھا اور ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں کہ جن کو چھوٹنے یا ان میں کچھ کمی ہو جانے سے وضو نہ ہوگا، اور کچھ باتیں سنت ہے کہ جن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہوگا، اور کچھ چیزیں مستحب ہے کہ ان کو چھوڑ دینے سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نیچے ہم ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں، ان کو سن کر خوب اچھی طرح یاد کر لو۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 پورے چہرے کا 1 بار دھونا۔ نمبر 2 ایک بار دونوں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھونا۔
नंबर 3, एक बार चौथाई सर का मसा करना यानी गीला हाथ सर पर फिरा लेना। नंबर 4, एक बार टखनों समेत दोनों पैरों को धोना। मसला, वजू या गुस्ल में किसी उजव को धोने का यह मतलब है कि जिस उजव को धो वो उसके हर हिस्सा पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। अगर कोई हिस्सा भीग तो गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वजू या गुस्ल नहीं होगा। बहुत से लोग बदन पर पानी डालकर हाथ फिराकर के बदन पर पानी चुपड़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि बदन धुल गया। यह गलत तरीका है। बदन पर हर जगह पानी का कम से कम 2 बूंद बह जाना जरूरी है और मसा करने का यह मतलब है कि गीला हाथ फिरा लिया जाए। सर के मसा से बाद जाहिलों का यह तरीका है कि मसा के लिए हाथों में पानी लेकर उसको चूमते हैं फिर मसा करते हैं। यह एक लगाव काम है। मसा में गीला हाथ सर पर फिरा लेना चाहिए। वजू की सुन्नतें। वजू में 16 चीज़ें सुन्नत है। नंबर 1, वजू की नीयत करनी। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, पहले दोनों हाथों को 3 बार धोना। नंबर 4, मिसवाक करना। नंबर 5, दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6, दाहिने हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 7, बाएं हाथ से नाक साफ करना। नंबर 8, दाढ़ी का उंगलियों से खिलाल करना। नंबर 9, हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 10, हर उजव को 3-3 बार धोना। नंबर 11, पूरे सर का 1 बार मसा करना। नंबर 12, तरतीब से वजू करना। नंबर 13, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उन पर गीला फिरा लेना। नंबर 14, अजा को लगातार धोना कि एक उजव सूखने से पहले ही दूसरे उजव को धो लें। नंबर 15, कानों का मसा करना। नंबर 16, हर मकरूह बात से बचना। वजू के मुस्तहबात। वजू में जो चीज़ें मुस्तहब हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिनमें से कुछ ज़िमनन वजू के तरीका में जिक्र हो चुकी। बाकी को अगर तफसील के साथ जानना हो तो बड़ी बड़ी किताबों मसलन हमारे बहरहाल चंद मुस्तहबात यह हैं जो अजा जोड़ो हैं। मसलन दोनों हाथ दोनों पाँव तो उनमें दाहिने से धोने की इब्तिदा करें, मगर दोनों रुखसार को उन दोनों को एक ही साथ धोना चाहिए। यूं ही दोनों कानों का मसा एक ही साथ होना चाहिए। नंबर 2, अंगुलियों को पीठ से गर्दन का मसा करना। नंबर 3, ऊंची जगह पर बैठकर वजू करना। नंबर 4, वजू का पानी पाक जगह गिरना। नंबर 5, अपने हाथ से वजू का पानी भरना। नंबर 6, दूसरे वक्त के लिए पानी भरकर रख देना। नंबर 7, बिला ज़रूरत वजू करने में दूसरे से मदद ना लेना। नंबर 8, ढीली अंगूठी को भी फिरा लेना। नंबर 9, साहिब उज्र ना हो तो वक्त से पहले वजू कर लेना। नंबर 10, इत्मीनान से वजू करना। नंबर 11, कानों के मसा के वक्त छंगलियाँ कान के सुराखों में दाखिल करना। नंबर 12, कपड़ों को टपकते हुए कतरों से बचाना। नंबर 13, वजू का बर्तन मिट्टी का हो। नंबर 14, अगर ताबे वगैरह का हो तो कलई किया हुआ हो। नंबर 15, अगर वजू का बर्तन लोटा हो तो बाएं तरफ रखें। नंबर 16, अगर वजू का बर्तन तस्त या लगन वगैरह हो तो दाहिनी तरफ रखें। नंबर 17, अगर लोटे में दस्ता लगा हो तो दस्ता को 3 बार धो लें। नंबर 18, और हाथ दस्ता पर रखें, लोटे के मुंह पर हाथ ना रखें। नंबर 19, हर उजव को धो कर उस पर हाथ फेर देना ताकि कतरे बदन या कपड़े पर ना टपके। नंबर 20, हर उजव को धोते वक्त दिल में वजू की नीयत का हाजिर रहना। नंबर 21, हर उजव को धोते वक्त बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ व कलमे शहादत पढ़ना। नंबर 22, हर उजव को धोते वक्त अलग अलग उजव के धोने की दुआओं को पढ़ते रहना। नंबर 23, अजाए वजू को वो बिला ज़रूरत पोंछ कर खुश्क ना करें और अगर पोंछें तो कुछ नमी बाकी रहने दें। नंबर 24, वजू करके हाथ न झटकें कि ये शैतान का पंखा है। नंबर 25, वजू के बाद अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नमाज पढ़ लें। इसको तहियतुल
वजू कहते हैं। वजू के मकरूहात। वजू में 21 बातें मकरूह हैं, यानी ये चीज़ें वजू में ना होनी चाहिए। नंबर 1, औरत के वजू या गुस्ल के बचे हुए पानी से वजू करना। नंबर 2, वजू के लिए नाजिस जगह पर बैठना। नंबर 3, नजिस जगह वजू का पानी गिराना। नंबर 4, मस्जिद के अंदर वजू करना। नंबर 5, वजू के आजा से वजू के बर्तन में कतरे को टपकना। नंबर 6, पानी में खंगार या थूक डालना। नंबर 7, किबला की तरफ थूकना या खंगार डालना। नंबर 8, बिला ज़रूरत दुनिया की बात करना। नंबर 9, ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना। नंबर 10, इस कदर कम पानी खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो। नंबर 11, मुंह पर पानी मारना। नंबर 12, मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना। नंबर 13, सिर्फ एक हाथ से मुंह धोना। नंबर 14, होंठ या आँखों को जोर से बंद करके मुंह धोना। नंबर 15, हलक और गले का मसा करना। नंबर 16, बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना। नंबर 17, दाहिने हाथ से नाक साफ करना। नंबर 18, अपने लिए कोई वजू का बर्तन मखलूस कर लेना। नंबर 19, 3 नए पानियों से 3 बार सर का मसा करना। जिस कपड़े से इस्तंजा का पानी खुश्क किया हो उससे वजू के अज़ा को पोंछना। नंबर 21, धूप में गर्म होने वाले पानी से वजू करना। इनके अलावा हर सुन्नत का छोड़ना मकरूह है। मसला, वजू ना हो तो नमाज व सजदे, तिलावत और कुरान शरीफ छूने के लिए वजू करना फ़र्ज है और खाने काबा के तवाफ़ के लिए वजू वाजिब है। मसला, जुनूब को खाने पीने सोने के लिए वजू कर लेना सुन्नत है। इसी तरह अजान व इकामत व खुतबे जुमा व ईदैन व रोज़े मुबारक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और उकूफ़े अरफा और सफ़ाए बरवा के दरमियान सही के लिए वजू कर लेना सुन्नत है। मसला, सोने के लिए, सोने के बाद, मैयत को नहलाने या उठाने के बाद, जिमा से पहले, गुस्सा आ जाने के वक्त, ज़बानी कुरान शरीफ पढ़ने या इल्मे हदीस और दूसरे दीनी उलूम पढ़ने पढ़ाने के लिए या दीनी किताबें छूने के लिए, शरमगाह छूने या काफिर से बदन छू जाने या सलीब या बुत छूने के बाद, झूठ बोलने, गीबत करने और हर गुनाह के बाद तौबा करते वक्त, किसी औरत से अपना बदन बेपर्दा छू जाने से या कोढ़ी और वर्ष वाले का बदन छू जाने से, बगल खुजाने और ऊँट का गोश्त खाने के बाद, इन सब सूरतों में वजू कर लेना मुस्तहब है।